Yes, all of you have joined. Okay, very good. Now see here. Suppose electron is flowing in this direction, which is anti-clockwise direction. So I can say that current will flow in clockwise direction. Direction of current is always opposite to the direction of electron flow. So if I want to calculate the current due to this electron, which is revolving around this proton, so current will be charge upon time. Let's say for one complete revolution, the time is capital T. है ना? So time can be written as distance upon speed. Distance is your 2 pi r for one complete revolution. And let's suppose the speed of electron as v. Electron is moving with the v uniform speed. So this will be your time period for one revolution. If you substitute this value here, you will get the value of current, which is equal to E upon 2 pi r into v. EV अपॉन 2 पाई आर. ठीक है. अब इस में करंट फ्लो हो रहा है, इस ऑर्बिट में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी जनरेट होगा. और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? विच इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया. Magnetic moment generated due to the flow of current, which is equal to current into area. What is the area of this circular section? I can write I into pi r square. Now if you substitute the value of this current in this equation, you will get the magnetic moment, which is EV upon 2 pi r into pi r square. This will be your magnetic moment. देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया. So you will get EVR upon 2 pi. ठीक है. EVR upon 2 pi. So your magnetic moment is, I can say your magnetic moment is EVR upon 2 pi. हाँ, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया. वेरी गुड. पाई से पाई तो कैंसिल हो गया ना. हाँ, तो ये वाला पाई नहीं आएगा. EVR अपॉन 2. ठीक है. EVR अपॉन 2 आएगा. पाई तो कैंसिल हो गया. वेरी गुड. दिस विल बी योर मैग्नेटिक मोमेंट. अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर और नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया. ऊपर और नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया. ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो एम वी आर ये आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम. एम वी आर इज नोन एज योर एंगुलर मोमेंटम, विच इज डिनोटेड बाय एल. दिस इज नोन एज योर एंगुलर मोमेंटम. है ना. तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट का एक नया इक्वेशन फॉर्म हो गया, विच इज
E/2 L upon me, E/2 me into L। ठीक है। अच्छा, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? दिस M/L रेशियो is also known as, this ratio is also known as gyromagnetic ratio. This ratio is known as gyromagnetic ratio. This ratio is known as gyromagnetic ratio, और इसका वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कूलम पर केजी। ठीक है। है ना? सबको समझ आया यहां तक? यहां तक सब क्लियर हो? जायरोमैग्नेटिक रेशियो तक? वेरी गुड। अब हमने बोर का मॉडल सबने पढ़ रखा है आपने, तो आपको पता है बोर के मॉडल में एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, अकॉर्डिंग टू बोर, NH upon 2 pi. According to Bohr, angular momentum is defined as NH upon 2 pi, where H is your Planck's constant. And N is your natural number. ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं। अब सपोज करो हमें मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, कितना होगा, है ना? सपोज वी वांट टू फाइंड द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट। हमें मैग्नेटिक मोमेंट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि कम से कम कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो कम से कम कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट का जो इक्वेशन आया है which is EL upon 2me, which is equal to EL upon 2me। अब इसमें देखो ये सब चीजें तो कांस्टेंट है, चार्ज इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट। तो मैं किसको मिनिमाइज कर सकता हूं? आई कैन मिनिमाइज दिस एंगुलर मोमेंटम, and the minimum value of angular momentum I can calculate from this Bohr's model। n की जगह पे क्या रखूंगा मिनिमम L निकालने के लिए? n की जगह पे मैं पुट करूंगा 1। if you put n is equal to 1, you will get the minimum value of this angular momentum, and when you substitute in this equation you will get the minimum magnetic moment। yes, very good। so minimum magnetic moment आपको कितना मिल जाएगा? L की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यू, you will get E into L minimum is what? H upon 2 pi, E into H upon 2 pi, so you will get 4 pi into me। EH upon 4 pi me। अब आप यहाँ पे सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.634 इंटू 10 की पावर -34। पाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। If you substitute all these values, you will get the minimum value of magnetic moment, which is 9.27 into 10 की पावर -24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर।
ठीक है, मतलब देखो कितनी छोटी वैल्यू है ये। आप ये देखो यहां से कि ये जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है कितना छोटा वैल्यू है, और इस छोटी सी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इस छोटी सी वैल्यू को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटन। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत काम आएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट कवर करेंगे तो आपको ये टर्म फिर से पढ़ने को मिलेगा। दिस इज नोन एज बोर मैग्नेटन। दिस मिनिमम वैल्यू इज नोन एज योर बोर मैग्नेटन। ठीक है, एंड ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने फाइंड करी है विद दिस फॉर्मूला, दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज नोन एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ना। इसके जनरल इक्वेशन को हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे, और जब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे उसको बोलेंगे बोर मैग्नेटन। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज बोर मैग्नेटन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिनिंग मोमेंट होती है, ये सब हम वहीं से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के बारे में आप केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, तो वहां पे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। चलो, ऑल ऑफ यू आर क्लियर अप टू दिस? यस, हाँ, के एल एम एन जो भी आप पढ़ते हो, अलग अलग शेल्स पढ़ते हो, यस। ठीक है, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? आधे बच्चे तो गायब ही हो गए, सिर्फ 11 की स्ट्रेंथ रह गई। भाई 11 बच्चे गायब हो गए, क्या हमने ज्यादा पढ़ लिया क्या? यस, प्रियंका, टिशा, ओम, पूजा, केशवी, कृपल, किरमी, दर्शनिका, एंजल, ओनली 11 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। हाँ चलो, मैं थ्योरी के टॉपिक्स दे देता हूँ आपको लिस्ट बना के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 आपका सिलेबस है। चैप्टर नंबर 3 में देखो आपको क्या क्या कवर करना है। पहला आपको पता होना चाहिए ड्रिफ्ट स्पीड का कंसेप्ट। नेक्स्ट यू शुड नो रेजिस्टिविटी। इसके बाद हमने कलर कोडिंग पढ़ी थी, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। कलर कोडिंग अच्छे से पढ़ लेना, कलर कोडिंग सबको आनी चाहिए। उसके बाद किरचॉफ के लॉ पता होने चाहिए। किरचॉफ लॉ के बाद मैंने आपको 3 तरह के वो पढ़ाए थे। एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था, 3 अरेंजमेंट्स हमने कवर किए थे। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर।
तो इतना पार्ट तो आपका आना चाहिए थर्ड चैप्टर में से। ठीक है, चैप्टर 3 में आप इतना पोर्शन कवर करोगे, कम से कम इतना तो करोगे ही। इसके अलावा एक्स्ट्रा पोर्शन बाद में कवर करोगे। चैप्टर नंबर 4 में आ जाओ। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या कवर करना है? चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ आपको आना चाहिए। एम्पियर्स लॉ आपको आना चाहिए। सोलेनॉइड और टॉरॉइड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टॉर्क इन मैग्नेटिक रेक्टेंगुलर लूप, टॉर्क इन लूप। उसके बाद हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा। और आज हमने शंट रेजिस्टेंस पढ़ा, शंट एंड कन्वर्जन। ठीक है, हाँ, फोर्सेस बिटवीन पैरेलल वायर्स भी आपको पता होना चाहिए। फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स निकालने के आपको लॉस सारे पता होने चाहिए। दो वायर्स के बीच में फोर्स कैसे निकालोगे, है ना। साइक्लोट्रॉन वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है ना। साइक्लोट्रॉन की थियरी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन में क्या इंपॉर्टेंट है, उसका वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन। थ्योरी पार्ट जो है उसका, दैट इज वर्किंग प्लस कंस्ट्रक्शन। तो इतना तो मिनिमम पार्ट मैंने आपको बता दिया है। इतना मिनिमम पार्ट आपको कवर करना ही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पार्ट भी कवर करोगे अगर आपके पास टाइम बचेगा तो, है ना। सर वी हैव टू राइट दिस रिवीजन लेक्चर इन फेयर नोटबुक विद नोट्स। यस, ये रिवीजन लेक्चर जो भी हमारे हो रहे हैं आपको फेयर नोटबुक में ही लिखना है, क्योंकि रिवीजन लेक्चर्स में कुछ कुछ नए टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए, तो वो आपको फेयर नोटबुक में ही सब कंप्लीट करके रखना है। चलो, थर्ड और फोर्थ चैप्टर सब लोग पढ़ लोगे ना। एमसीक्यूज एग्जाम्स में, हाँ, एमसीक्यू भी आएंगे, एमसीक्यू भी आएंगे, थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल भी आएंगे। सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, एमसीक्यू, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, सब कुछ। गॉट इट? और कोई डाउट है तो बताओ, कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो बताओ। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हमने रखा है। ऑल क्लियर? 1 मार्क में एमसीक्यू ही रखना। हाँ, एमसीक्यू आपके 1 मार्क्स के आएंगे। एमसीक्यू जितने भी होंगे 1 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल वाला पार्ट 4 मार्क्स। ठीक है, पेपर का अभी तक मेरे को कोई इंफॉर्मेशन मिला नहीं है। सो अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, तो मेरी तरफ से एवरीथिंग इज कंप्लीट। और मंडे को हम चैप्टर चालू करेंगे, 5th वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 वी विल स्टार्ट ऑन मंडे। 10 एमसीक्यू आएंगे क्या? नहीं, अभी एमसीक्यू का मेरे को नहीं पता कितने रखेंगे, लेकिन रखेंगे एमसीक्यू। अब वो 5 एमसीक्यू रखे कि 10 रखे, ये डिपेंड करता है आपके पेपर पे। ठीक है बेटा? यस, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन मंडे, न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5।
Okay, bye bye to all of you.